اللہ، یہ کیسے لوگ ہیں جو دوسرے کے کام اور اس کی محنت کے بارے میں کچھ نہیں سوچتے۔ عدنان اپنی چھوٹی سی دکان میں کچوری بیچا کرتا تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی کچوریاں سب کے دل کو بہت ہی بھاتی تھی۔ عدنان بھیا، تمہاری کچوری تو بہت مزیدار ہے، ایک دو کھا کر تو دل ہی نہیں بھرتا، دل کرتا ہے کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ۔ تو کھاؤ بھیا، جتنی کچوریاں کھانی ہیں کھاؤ، آپ کھاتے جاؤ میں بناتا جاتا ہوں۔ لا عدنان، مجھے 10 کچوریاں باندھ دے، میرے بچوں کو تیری کچوریاں بہت پسند ہیں۔ لیجئے بھیا۔ عدنان کی ایک چھوٹی سی دکان ایک بڑی سی دکان کے پاس ہی تھی۔ اس کی اتنی بکری دیکھ وہ دکاندار بہت ہی غلط سوچتا تھا عدنان کے لیے۔ ارے اس کی وجہ سے روز ہی مجھے اپنی کچوریاں پھینکنی پڑ رہی ہیں، نہ جانے ایسا کیا ہے اس کی کچوریوں میں، جبکہ میں بھی تازی کچوریاں بناتا ہوں اور دکان کے اندر صاف صفائی بھی رکھتا ہوں، پھر بھی لوگ کچوریاں اسی سے لیتے ہیں۔ آخر کیا ہے ایسا اس میں؟ میں تو کہتا ہوں مالک، ہم کچوری بنانا بند کر دیتے ہیں، آج سے بھی ہماری دکان سموسے اور مٹھائی پر چل رہی ہے، کچوری بند کرنے سے کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوگا۔ تو اپنی بات اپنے پاس ہی رکھ، اگر میں اسی طرح تیری سنوں گا تو کل کو سموسے اور مٹھائی بھی بند کروا دے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ سب کچھ میرا ہی بکے، کچوریاں بھی، مٹھائی بھی اور سموسے بھی، اور تو وہ کچوریاں بنانے پر دھیان دے، اگر تو اچھی کچوریاں بنائے گا تو بکے گے نا۔ ارے تو بھی اچھی کچوریاں بنانا سیکھ، تجھے اسی کام کے لیے رکھا ہے میں نے، سنا؟ ٹھیک ہے مالک۔ دکاندار اس بات سے بڑا ہی پریشان تھا کہ اس کی کچوریاں نہیں بکتی۔ تبھی ایک سیٹھ عدنان کی دکان پر کچوریوں کا ایک بڑا آرڈر دینے آتا ہے۔ دکاندار بھی یہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کیا یہ عدنان کچوری والے کی دکان ہے؟ ہاں سیٹھ، میں ہی عدنان کچوری والا ہوں۔ سنا ہے تمہاری کچوریاں بہت ہی بڑھیا ہے۔ ہاں سیٹھ، آپ ایک بار کھا کر تو دیکھیں۔ ہاں کھاؤں گا تمہاری کچوری، تمہارے اتنے چرچے جو سن رکھے ہیں۔ ہاں اب دیکھوں کیسا کیا خاص ہے تمہاری ان کچوریوں میں۔ عدنان سیٹھ کو کچوریاں دیتا ہے۔ سیٹھ بھی کچوریاں کھا کر اس کی بڑی تعریف کرتا ہے۔ عدنان کچوری تو بہت مزیدار ہے، ایک کھا کر تو دل ہی نہیں بھرا، اور دو نا۔ سیٹھ کو بھی کچوری بہت پسند آتی ہے اور وہ عدنان کو ایک بہت ہی بڑا آرڈر دیتا ہے۔ میں تمہاری کچوریوں کے چرچے سن کے آیا تھا، اور تمہاری کچوریاں ہیں بھی بہت مزیدار۔ کل میری بیٹی کا جنم دن ہے اور کوئی 500 کچوریاں چاہیے اس میں۔ کچوریاں وقت سے پہلے ہو جائیں گی نا؟ عدنان بہت ہی خوش ہوتا ہے، اتنا بڑا آرڈر اسے پہلی بار ملا ہے۔ ٹھیک ہے سیٹھ جی، میں آپ کو بہت ہی بڑھیا کچوریاں دوں گا، آپ کے یہاں سب تعریف کریں گے، لیکن میں آپ کو شام تک ہی دے پاؤں گا، تازی کچوریاں بنانے میں وقت تو لگ ہی جاتا ہے نا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں کل شام میں آؤں گا اور کچوریوں کا حساب کر کے روپے بھی دے جاؤں گا۔ ٹھیک ہے سیٹھ جی، جیسا آپ کہیں۔ دکاندار یہ سب سن کر چونک جاتا ہے اور من ہی من سوچتا ہے، یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ میرے یہاں ایک کچوری نہیں بک رہی اور اسے 500 کچوریوں کا آرڈر مل رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب مجھے فوراً کچھ کرنا پڑے گا جس سے یہ سیٹ کا آرڈر پورا نہ کر سکے۔ دکاندار کچھ دیر سوچتا ہے اور پھر اچانک بہت خوش ہو جاتا ہے۔ ہاں یہی صحیح رہے گا، یہ کچوریاں بنا کر تو گھر سے ہی لائے گا نا، اور وہ بھی سر پر رکھ کر۔ اب دیکھنا میں کیا کرتا ہوں، اسے یہ آرڈر پورا تو نہیں کرنے دوں گا، کچھ بھی ہو جائے یہ آرڈر بالکل بھی پورا نہیں کرنے دوں گا، بالکل نہیں۔ دکاندار بھی اپنی دکان میں کچوریاں بنوانے کی سوچ لیتا ہے۔ ارے سن،
कल सुबह जल्दी 500 कचौरियाँ तैयार करनी है। समझ आ रही है ना मेरी बात? लेकिन मालिक, इतने कचौरियाँ? हमारे यहाँ तो एक कचौरी भी नहीं बिक रही और आप 500 का ऑर्डर बनवा रहे हैं। तुझसे जितना बोला जाए उतना किया कर। 500 कचौरियाँ तैयार कर देना, आए समझ? अदनान अपने घर की तरफ जा रहा होता है कि रास्ते में इसे सेठ मिल जाते हैं। अरे अदनान, जी सेठ जी, बोलिए। अच्छा हुआ तुम मुझे इधर ही मिल गए। मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। वो तुम्हें जो 500 कचौरी का ऑर्डर दिया था ना, वो ज्यादा है। मेरी बीवी बोल रही थी 500 कचौरियों का ज्यादा हो जाएगा। तुम एक काम करो, 250 कचौरियाँ बना लो। ठीक है सेठ जी, जैसा आप कहें मैं वैसा ही कर लूँगा। अदनान अपने घर को चल देता है और रात को जल्दी सो जाता है। उस रात से ही मौसम बहुत ख़राब हो जाता है। सारी रात बारिश होती है, सुबह भी बारिश हो रही होती है। अदनान सुबह से ही कचौरियाँ बनाने में लग जाता है और अकेला ही बड़ी मेहनत और लगन से कचौरियाँ बना लेता है। तेज़ बारिश को देख अदनान अल्लाह से दुआ करता है, या अल्लाह, ये कैसा मौसम हो रहा है। अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो मैं दुकान कैसे जाऊंगा। मैं भी जल्दी कचौरियाँ बनाकर दुकान को चलता हूँ। अदनान जल्दी से सारी कचौरियाँ तैयार करने लग जाता है। वो दुकानदार भी अपनी दुकान में कचौरियाँ तैयार करवाता है। अरे सुन, कचौरियाँ तैयार हो गई ना? हाँ मालिक, पूरी 500 कचौरियाँ बनाई हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वैसे मालिक, आज सुबह से मौसम खराब है, बारिश भी हो रही है। इतनी कचौरियाँ कौन खाएगा मालिक? तेरा दिमाग कम चलता है। तू देखना, आज ये सारी की सारी कचौरियाँ कैसे फटाफट बिकती है। हाँ, तू देखना आज मैं क्या करता हूँ। अदनान दोपहर तक सारी कचौरियाँ तैयार कर लेता है और बारिश के थमने का इंतज़ार करने लगता है। लेकिन इंतज़ार करते करते शाम हो जाती है। शाम होने ही वाली है। सेठ दुकान पर पहुँचने ही वाले होंगे कचौरियाँ लेने। या अल्लाह, बस कुछ देर बारिश रुक जाए तो मैं जल्दी से दुकान पहुँच जाऊँगा। फिर वहाँ पर सब संभाल लूँगा। फिर चाहे बारिश हो भी जाए तो कोई मसला नहीं। उधर दुकानदार का एक आदमी रास्ते में अदनान पर नज़र रखता है और उसके आने का इंतज़ार करने लगता है। इधर बारिश के थमते ही अदनान फ़ौरन ही एक बड़ी सी टोकरी में कचौरियाँ भरकर दुकान की तरफ निकल पड़ता है। मौसम अभी भी ख़राब ही लग रहा होता है, बारिश कभी भी हो सकती है। अदनान तेज़ तेज़ अपनी दुकान की तरफ बढ़ रहा था। जैसे जैसे मौसम बिगड़ रहा था और बादल गरज रहे थे, अदनान के कदम अपनी दुकान की तरफ और तेज़ होते जा रहे थे। यही सोचकर वो अपनी दुकान की तरफ तेज़ तेज़ बढ़ रहा होता है कि अचानक एक आदमी अपनी साइकिल पर आता है और इसे ज़ोर से टक्कर मार देता है, जिससे अदनान गिर जाता है। उसकी सारी कचौरियाँ भी गिर जाती हैं और उसकी टोकरी भी गिर जाती है। अदनान साइकिल वाले पर गुस्सा होते हुए कहने लगा, जब साइकिल चलानी नहीं आती है तो चलाते क्यों हो? रुक, मेरा नुकसान करके जा रहा है, इसकी भरपाई तो करता जा। या अल्लाह, ये कैसे लोग हैं जो दूसरे के काम और उसकी मेहनत के बारे में कुछ नहीं सोचते। मेरी तो सारी कचौरियाँ खराब हो गई। अब मैं सेठ जी को क्या दूंगा? इतना बड़ा ऑर्डर मिला था, अगर अब ये पूरा नहीं किया तो फिर कोई क्या ही भरोसा करेगा और क्या ही ऑर्डर देगा। अब तो वैसे भी शाम हो गई है, इतना वक्त भी नहीं है कि दोबारा कचौरियाँ तैयार कर सकूं। ये सोच सोच अदनान वहीं बैठ जाता है। उसे नहीं सोचता कि अब किया क्या जाए। एक काम करता हूँ। हाँ, मैं दुकान जाता हूँ और वहाँ जाकर
दोबारा कचौरियाँ तैयार करता हूँ। क्या पता सेठ जी के आने से पहले मैं कचौरियाँ तैयार कर ही लूँ। वो अपनी टोकरी उठाकर दुकान की तरफ चल देता है। अभी जोर से बादल गरजते हैं और तेज बारिश होने लगती है। अरे इतनी तेज बारिश फिर से? अब तो मैं दुकान पे भी नहीं जा पाऊंगा। एक काम करता हूँ, घर ही चला जाता हूँ, फिर कभी सेठ जी से माफी मांग लूंगा। ये बोलकर अदनान घर को चल देता है। उधर दुकानदार सेठ का इंतजार करते हुए सोचता है, अदनान की कचौरियाँ तो बन गई, अब वो दोबारा कचौरियाँ बनाकर तो लाएगा नहीं। अब बस जल्दी से सेठ जी आ जाए तो मेरा काम बन जाएगा। जब वो देखेंगे कि अदनान की दुकान बंद है तो वो परेशान हो जाएंगे और तभी मैं उन्हें कचौरियाँ दे दूंगा और फिर वो खुश हो जाएंगे और मेरी तारीफ भी करेंगे। क्या पता फिर लोग मेरी दुकान में आने लगे और मेरी बिक्री भी बढ़ जाए। वाह वाह वाह, मजा आ जाएगा। वो सेठ जी का इंतजार करता है, लेकिन बारिश तेज होती जाती है। ये देख काम वाला दुकानदार से कहता है, वैसे मालिक, हमें आसपास कोई नजर भी नहीं आ रहा और बारिश भी बहुत तेज हो रही है। ऐसे में हमें घर जाना चाहिए। अरे तू अंदर जाकर लेट जाना, दुकान आज खुली रखनी है। हाँ। ये सुनकर काम वाला अंदर चला जाता है। बारिश होते होते रात हो जाती है। दुकानदार बारिश के रुकने का इंतजार करते करते थक जाता है। ये मौसम को भी आज ही खराब होना था। कल रात से ही बारिश नहीं रुक रही, आस पास भी सब खाली पड़ा है। अब तो रात भी हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कि अब सेठ जी आएंगे। क्या करूं? आखिरकार सेठ का इंतजार करते करते दुकानदार थक जाता है और दुकान बंद कर देता है। सेठ जी दुकान पर कचौरियाँ लेने आए होंगे, लेकिन जब उन्हें कचौरियाँ नहीं मिली होंगी तो वो कितने दुखी हुए होंगे और उदास मन से चले गए होंगे। अब लोग मुझे ऑर्डर कैसे देंगे? उधर अदनान दुखी मन से सो जाता है। अगले दिन दुकानदार सुबह जल्दी दुकान खोल लेता है और रात की वही कचौरियाँ गरम करके बेचने को रख देता है। लोग कचौरियाँ खाकर दुकानदार की बुराई करते हैं। अरे तुम खराब समोसा खिला रहे हो हमारे पेट खराब करने के वास्ते। तुम ऐसा बासी सामान बेचते हो, इसलिए हम तुमसे अब कुछ नहीं खरीदेंगे। हाँ, लग रहा है जैसे कल की बासी कचौरियाँ गरम करके खिलाई जा रही हों। हाँ। ग्राहक भी दुकान से नाराज होकर चले जाते हैं। मालिक, मैंने कल आपसे कहा भी था कि मौसम ठीक नहीं है। अब एक काम करें, इन समोसों को फेंक दें। ऐसे ना हो कि हमारे ग्राहक इसी तरह नाराज होकर जाते रहें और हमारी मिठाई और समोसे भी ना बिकें। दुकानदार उसकी बात पर गौर करता है। बात तो इसकी सही है, मुझे ये कचौरियाँ फेंक देनी चाहिए। कोई बात नहीं, अब क्या ही कर सकते हैं। और वो पुरानी कचौरियाँ फेंककर नई और ताज़ी कचौरियाँ बनाने लगता है। तभी अदनान भी अपनी दुकान खोलने के लिए आ जाता है। या अल्लाह, कहीं सेठ जी आकर मुझ पर आज गुस्सा ना करने लग जाएं। अदनान अपनी दुकान शुरू करता है। थोड़ी ही देर में सेठ जी उसके पास उसकी दुकान पर आ जाते हैं। अरे अदनान। हाँ सेठ जी, कहिए। कल मैं तुम्हारे यहाँ कचौरी नहीं ले पाया। कल बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी और मौसम भी बहुत ख़राब था। हमारे यहाँ मेहमान भी बारिश की वजह से नहीं आए और पार्टी भी नहीं हुई। इस वजह से मैं कचौरियाँ नहीं ले पाया तुमसे। कोई बात नहीं सेठ जी, जब मौसम ही ऐसा था तो क्या कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ तुमने कल कचौरियाँ बनाई होंगी
और मेरे ना आने की वजह से तुम्हें वो फेंकनी पड़ी होंगी, तो मैं नहीं चाहता तुम्हारा नुकसान हो, तो ये तुम्हारी 250 कचौरियों के पैसे। सेठ अदनान को उसके पैसे देते हैं। अदनान वो पैसे लेकर बहुत ही खुश होता है और सेठ का शुक्रिया अदा करता है। शुक्रिया सेठ जी, आपने इस बात का ख्याल किया, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। भाई ये तो तुम्हारी मेहनत के हैं, और अगला ऑर्डर भी मैं तुम्हें ही दूंगा। दुकानदार ये सब सुन रहा होता है और बहुत चौंक जाता है। वो ये सोचता है कि जब ऑर्डर 500 कचौरियों का है तो सेठ 250 कचौरियों की बात क्यों कर रहा है? अरे वो तो अच्छा हुआ कि उस दिन तुम मुझे रास्ते में ही मिल गए। मैंने तुम्हें 500 कचौरी के बजाय 250 कचौरी बोल दिया, वरना तुम्हारी 500 कचौरियाँ ज़ाया हो जानी थी और मेरा ज़्यादा नुकसान होता। अदनान इस बात पर हंस देता है। दुकानदार सब समझ जाता है और अपनी इस हरकत पर बहुत ही शर्मिंदा होता है। मैंने अदनान का नुकसान करने की कोशिश की। वो अच्छी कचौरियाँ बनाता है, उसका अच्छा काम होता है, इसीलिए उसकी कचौरियाँ बिकती हैं। अब मैं भी समझ चुका हूँ कि मुझे भी अच्छा काम करना चाहिए। उसका नुकसान करने की सोची तो उल्टा मेरा ही हो गया। अदनान के पास जाकर माफ़ी भी मांगता है। अदनान भैया। हाँ भैया, कैसे हो? अदनान मेरे भाई, मैं तुझसे माफ़ी मांगने आया हूँ। माफ़ी? किस बात की? मैंने तुम्हारा नुकसान करने की कोशिश की, अब मैं समझ चुका हूँ, मुझे माफ़ कर दो मेरे भाई। अब से मैं भी अच्छा काम करने की कोशिश करूँगा और कचौरियाँ बनाना बंद कर दूँगा। कचौरियाँ तुम बनाना और मिठाई और समोसे मैं बना लिया करूँगा, और इस तरह हम दोनों की दुकानें चला करेंगी, है ना अदनान भैया? मैं फिर से कहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो मेरे भाई। दुकानदार की ये बात अदनान को बहुत ही अच्छी लगती है और फिर वो दोनों मिलकर काम करने लगते हैं।